Today we, Ritusha Singh, Arunab Kushal, Khushi Khandelwal, G. Sai Janani, Vanya Agrawal, Ritika Gulati, Naz Fatima, Arush Goyal, have come together to celebrate the cultural extravaganza and jubilations of our school's 40th Foundation Day. On this significant day, a brick was laid, marking the foundation of a grand vision. Through unwavering determination and steadfast perseverance, that initial brick has supported the construction of a magnificent institution. For 4 decades, this structure has continually evolved and flourished, providing a solid foundation for countless successful people and guiding individuals at every stage of their journey. This occasion allows us to reflect on and honor the milestones we have achieved over the past 40 years and to recognize the collective efforts of our teachers, students, parents and other stakeholders that have shaped the success and the golden present of DPS Bhilai. We began our journey with just 204 students in classes 6 to 9. Today we stand proudly as a thriving fraternity of more than 5,300 students excelling in academics, sports, cultural activities and more, truly embodying our vision of nothing but excellence. This remarkable growth is a testament to the dedication and hard work of every member of our school. As we gather to commemorate this milestone, it is important for us to recognize how our journey exemplifies the seamless integration of progress and tradition. Our evolution from a modest beginning to a prestigious institution is not merely a story of growth, but also one of maintaining our core values and heritage. Let's pay a tribute to our heritage, the foundation upon which our progress is built. Our cultural heritage is the thread that weaves our past, present and future together. Today, let's celebrate the perfect blend of tradition and innovation as we embark on a journey of Vikas Bhi, Virasat Bhi, progress with heritage. Virasat, isn't it fascinating how India's history is illuminated by the incredible stories of great women who have defied societal norms and fought tirelessly for their rights? Absolutely, Vikas. But as history moved forward, women faced discrimination, inequality and violence, which largely confined their roles to the domestic sphere despite their profound influence. They were homemakers, caregivers and backbone of the household, ensuring that traditions and cultural practices that define their communities were preserved. नारी की शक्ति का तुम्हें आभास नहीं, नारी बिन इस दुनिया में कोई प्रकाश नहीं। इतिहास ने किया उनके काम का मान, जिन्हें धरती से आकाश तक मिला सम्मान। हर कदम पर है उनके संघर्ष की दास्तान, सत्य और साहस की मिसाल है नारी की निशानी, सत्य और साहस की मिसाल है नारी की निशानी। Today, we are going to celebrate the contributions of such empowered women of our past who embody the spirit of Vikas Bhi, Virasat Bhi. From the warrior queens of Rajasthan to the philosopher saints of Maharashtra, our history is replete with women who defied conventions and paved their own paths of progress. Women like Rani Avanti Bai, who fought against the British Empire, and Savitri Bai Phule, who championed women's education, are testaments to power of female leadership. These women drew strength from their heritage, yet adapted themselves to the challenges, embodying the essence of Vikas Bhi, Virasat Bhi. As we reflect on their stories, let's draw inspiration from their courage, resilience and determination. So, get ready to be amazed by Wama, breaking barriers and building futures, a dance drama featuring 51 of our talented students. पूजा हूँ, अर्चना हूँ, सूर्य किरण उजियारी हूँ, मैं नित बहती पावन गंगा हूँ, मैं आदि शक्ति जगदम्बा हूँ, उषा हूँ, जननी हूँ, कविता हूँ, कहानी हूँ, मैं हर महाकाव्य की गाथा हूँ, मैं अपनी भाग्य विधाता हूँ।
मीरा हूँ, गीता हूँ, मैं अनुसुईया सीता हूँ। ना अबला ना बेचारी हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ। जी हाँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ। जननी हूँ, जीवन भी मैं, जज्बातों पे मेरा जोर नहीं। सशक्त हूँ व साकार भी मैं, नारी हूँ, कमजोर नहीं। दर्पण भी हूँ व अक्स भी मैं, झुका सके मुझे वो शख्स नहीं। स्वाभिमानी हूँ व आत्मनिर्भर भी मैं, टूट कर बिखरूं अब वो वक्त नहीं। नहीं समझना आधी अधूरी, नहीं समझना आधी अधूरी, नहीं अधूरी, मैं खुद में हूँ, मैं खुद में हूँ। पर आज से नहीं, सदियों से ये बात और है, तुम्हारी आंखें आज खुली, पर मैं हमेशा से थी यही और सिर्फ यही। कभी मैं भक्ति का केसरिया रंग मीरा हूँ, तो कभी समाज के लिए मेरा सतरंगी ढंग अहिल्या हूँ। कभी लाल आँखों की क्रोधित गर्जना अवंतीबाई, तो कभी आत्मज्ञान की पावक अर्चना सावित्री ताई। जानो तो मुझे, पहचानो तो मुझे, मैं स्वाभिमान के लिए परम बलिदान कर दे ऐसी हूँ पद्मावती, पद्मावती। राजस्थान की बंजर भूमि पर कृष्ण भक्ति के सुंदर पुष्प महकाने एक दिव्य आत्मा ने जन्म लिया। कृष्ण प्रेम में पली बढ़ी व अंततः उन्हीं में विलीन हुई प्रेम दीवानी मीरा। राजा रतन सिंह व रानी वीर कुमारी के घर मीरा का जन्म हुआ। मेवाड़ के राजा कुंवर भोजराज संग मीरा का विवाह संपन्न हुआ। समय की इस बहती धारा में गुरु रैदास जी द्वारा अपने गिरधर का अंतर्मन में दर्शन कर मीरा की भक्ति पराकाष्ठा को छूती चली गई। यही वो समय था जिसने कृष्ण प्रेम में डूबी कृष्ण भजन गाती झूमती नाचती मीरा के एक और पक्ष को उजागर किया, क्रांतिकारी मीरा। भीषण सामाजिक विरोध सह कर भी मीरा ने भक्ति के नाम पर प्रचलित धारणाओं का खंडन कर शाश्वत धर्म का मानमंडन किया व नारी सशक्तिकरण, आत्मिक शांति, प्रेम, सौहार्द जैसे विषयों से सामाजिक चेतना को भी झकझोरा। Krishna
कभी विष का प्याला, कभी सतमों की माला, राजमहल का क्या, ये समस्त व्यक्तिगत संघर्ष भी इस प्रेम दीवानी को भक्ति पथ से विचलित नहीं कर पाया। संघर्षों की तेज आंधियों में कभी बुझता है क्या? अपने गिरधर के प्रति ऐसा ही एक निष्ठ समर्पण भाव रख मीरा ने सदा के लिए अनमोल को खरीद लिया। निस्वार्थ प्रेम की प्रतीक मीरा ने मूर्ति रूप कृष्ण को ही अपने जीवन का आराध्य बनाकर उसी में पूरा जीवन समर्पित किया और अंत में अपनी अपार शक्ति से उसी में अपने प्राण समा लिए। मैं भी बनूं ऐसी मीरा, ऐसी शक्ति को मैं अपने अंतरंग में बिठा लूं। मारो प्रणाम। ये कहानी है एक ऐसी रानी की जिनकी कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं दब कर रह गई। 18वीं शताब्दी में जब अधिकतर स्त्रियों का जीवन पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियों में जकड़ा था, तब इस नन्हे से दिल ने उन स्त्रियों की पीड़ा को अपने अंदर महसूस किया और यहाँ से आरंभ हुई एक मासूम कन्या से एक समाज सुधारक, शासक, राजमाता और लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की रात। निर्भरता का पाठ पढ़ाया, औद्योगिक क्रांति को सफल कर दिखलाया, धर्म को जीवन का मार्ग बनाया, मंदिरों का पुनरुद्धार कराया, जन जन की सेवा का
प्रण उठाया। समाज सुधार की परिपाटी तोड़कर मालवा की महारानी बनी अहिल्याबाई होलकर। जिन्हें उकेरा नहीं गया उन इतिहासों के हिस्से को। ये गाथा है एक रानी की, उसके आज़ादी के सपने की और उसकी कुर्बानी की। ग्राम मनखेड़ी, जिला सेवनी, राजा जुझार सिंह की बेटी थी। अवंती बाई नाम था जिसका, बेटों से बढ़कर बेटी थी। विवाह हुआ रामगढ़ के राजा लक्ष्मण सिंह के बेटे थे। समय रहा सन 57 का, दुश्मन घात लगाए बैठे थे। यूं समय जरा ही बीता, फिर सन्नाटा सा छाया था। रिक्त हुए सिंहासन पर शत्रु गिद्धों सा मंडराया था। यदि तुम्हें लगता है कि इस देश के लिए, भारत के लिए तुम्हारी कोई जिम्मेदारी है, तो उठाओ तलवार और कूद जाओ मैदान में सब अंग्रेजों के खिलाफ, वरना पहन लो ये चूड़ियां। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर द्वारा, लुट रहा ये जहां अपना वतन, आंखों से अपने लुट रहा ये जहां अपना वतन, आंखों से संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन गए विजय।
स्वतंत्रता के बाद भारतीय नारी की स्थिति में क्रांतिकारी बदलाव आया। आज की नारी राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। यह बात 19वीं सदी की है, जहां भारत देश कई सामाजिक कुरीतियों जैसे विधवाओं का शोषण, बाल विवाह एवं सती प्रथा में जकड़ा हुआ था। पुरुष प्रधान समाज में स्त्रियों का पढ़ना मानो अभिशाप था। ऐसे में क्या होगा स्त्री का भविष्य, क्या होगी स्त्री की दशा, वो केवल एक स्त्री ही समझ सकती थी। और यही बदलाव लाने के लिए एक क्रांतिकारी नारी ने जन्म लिया, जिनका नाम था सावित्री बाई फुले। कहाँ जा रही है? औरत जात को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। हाथों में किताब देखी तो तेरे हाथ कट जाएंगे। शिक्षा एक शक्ति है जो सारी कमजोरी दूर कर। शिक्षा एक प्रकाश है जो अंधकार को दूर कर। शिक्षा कोई भेदभाव नहीं करती। शिक्षित होना हम सबका अधिकार है। कितना भी जुल्म, कितनी भी परेशानी, इस समाज का हर वार हम सहेंगे। पीछे नहीं हटेंगे अब ये कदम। भारत की हर बेटी को पढ़ा कर रहेंगे। हर सवेरा यहाँ तो है, सब वहाँ है जहाँ तो है। कदमों में तेरे जन्नतें बिछी है, जलवों में तेरे शोहरतें छुपी। तो खुदा की दुआ, सब्र से रब ने तुझको सजाया। जग तू है साया, तेरे रूप में सब कुछ पाया। रह के ज़मीं पर आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है, आसमां तूने छुआ है। तू उड़ाने यहाँ तू है, सब वहाँ है जहाँ तू है। आप सुनो वह घटना जिसने मन का तार हिलाया है। बलिदानों की परिपाटी में स्वर्णिम नाम लिखाया है। नाम पद्मिनी रानी उसका देवधरा से आई थी। शायद वर्षों के तप से ही इतनी सुंदरता पाई थी। आओ जी आओ तू हमारे
उसकी सन्मुख थी नतमस्तक, लेकिन चर्चा यही रूप की अनहोनी की दस्तक थी। दुश्मन से न मानेंगे हार। क्या समझ रहे थे तुम अगला जो हाथों में आ जाएंगे? हम वीर शेरनी की जाए, हम तुमको भूल चटाएंगे। चित्तौड़ के आंगन में एक और लड़ाई होगी जो न कभी किसी ने देखी न सुनी होगी। वो लड़ाई हम शतरानियाँ लड़ेंगे और यही अलाउद्दीन के जीवन की सबसे बड़ी हार होगी।
video performers, your dance wonderfully represented the spirit of Vikas Bhi, Virasat Bhi. Look at how far we've come. Artificial intelligence today is transforming everything from healthcare to transportation. If we trace its origins, we find that its roots stretch back to ancient times. Absolutely. The journey from ancient ingenuity to modern sophistication is truly remarkable. Take the Pushpak Viman for example. While it's steeped in mythology, it reflects an early vision of advanced engineering and flight. Let's not forget Aryabhatta. His contributions to mathematics were monumental. Without his early insights, the algorithms that drive AI today would not be possible. From learning to count on his fingers to solving complex algorithms on computers, man has definitely made huge strides of progress in the application of his intelligence. From the development in technology, he was able to incorporate it into his thought process. What resulted was a perfect example of Vikas Bhi, Virasat Bhi through AI. Some people call this artificial intelligence, but the reality is this technology will enhance us. So, artificial intelligence, I think, will augment our intelligence. The next play portrays the many benefits of AI in our daily lives. So, let me invite on stage the middle grade students to present the wonders of AI. Good morning, आद्या स्कूल जाने का वक्त हो रहा है, 6 बज रहे हैं। गुड मॉर्निंग सिरी। वैसे तुम सारे काम अकेले कैसे कर लेती हो? खाना भी बना लेती हो, घर के काम भी कर लेती हो और मुझे स्कूल भी भेज देती हो। आद्या, इसके पीछे की एक बहुत लंबी कहानी है, क्या तुम जानना चाहोगी? बिल्कुल, मैं जानना चाहती हूँ कि तुम हमारी जिंदगी में कैसे आई। तो चलो आद्या, तुम्हें तुम्हारे बचपन के दिन याद दिलाएं। माँ, मुझे भूख लग रही है, मुझे कुछ खाने को दे दो। बेटा, वो तो मैं तुम्हें दे दूंगी, पर पहले तो ये बता कि होमवर्क कब करेगा? होमवर्क? आज तो गणित का होमवर्क मिला है, उसमें मुझे 3D शेप्स बनाने हैं। माँ, वो मुझसे अकेले नहीं होगा, पिताजी और आपको मेरे साथ बैठकर मेरी मदद करनी होगी। बेटा, तू तो एक काम अकेले नहीं कर पाता है। तो देखा तुमने आद्या, पहले आप लोग अपना होमवर्क खुद नहीं कर पाते थे और अब देखिए। एलेक्सा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने 3D शेप्स तो बना लिए हैं, पर उसका 3D प्रिंट आउट कैसे निकालूं? हाँ, क्या तुम यह काम कर सकती हो? आपका होमवर्क पूरा कर दिया गया है और उसका प्रिंट आउट भी निकल दिया गया है। धन्यवाद। देखा तुमने आद्या, मेरी मदद से आप लोगों का होमवर्क मिनटों में हो गया। एक वक्त ऐसा था जब तुम्हारे दादाजी बड़े परेशान थे, उस वक्त हम ही उनके काम आए। कैसे, आइए देखते हैं। पूजा, अरे ओ शिवा, कहाँ मर गए सब के सब? अरे मैं तो भूल ही गया कि घर पर तो कोई नहीं है। मुझे तो यह भी याद नहीं है कि कौन सी दवाई लेनी है और कहाँ रखी है। अब मैं क्या करूं? दादाजी, आप परेशान क्यों हो रही हैं? मुझे इसलिए ही तो प्रोग्राम किया गया है। ये लीजिए आपकी दवाई, इसे लेकर आप आराम करें। सिरी बेटा, तुम्हारे आने से तो हमारी जिंदगी ही बदल गई। जीती रहो। दादाजी, ये तो मेरा फर्ज था। तो चलो आद्या, यात्रा आगे बढ़ाएं। आद्या, एक समय ऐसा था जब एक बहुत बड़ी महामारी आई और जिसके कारण लॉकडाउन लगा था और तुम्हारे मम्मी पापा बड़े चिंतित हो गए थे। उस
समय हम ही उनके काम आए, कैसे आइए देखते हैं। आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। अरे शिवा, ना घर में राशन है ना सब्जी, घर में गैस भी खत्म होने को है। ये 60 दिन हम कैसे निकालेंगे? हाँ पूजा, बिजली का बिल भी भरना है और घर का राशन भी लाना है। ये सब घर से निकले बिना कैसे होगा? शिवा, एक काम करते हैं, सीरी से ही पूछ लेते हैं। हे सीरी। जी मैम, बताएं मैं क्या मदद कर सकती हूँ। सीरी, ना घर में राशन है ना सब्जी, घर में गैस भी खत्म होने को है। ये 60 दिन हम कैसे निकालेंगे? जी मैम, आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डिजिटल इंडिया के माध्यम से आप सब कुछ कर सकते हैं। मोबाइल के इस ऐप के माध्यम से आप राशन, सब्जी सब कुछ घर बैठे मंगवा सकते हैं और बिलों का भुगतान भी आसानी से कर सकते हैं। अरे वाह सीरी, तुमने तो हमारा काम आसान कर दिया। एक समय ऐसा था जब मैं तुम्हारे मम्मी पापा के साथ नहीं थी, पर भी उनके काम आई, कैसे आइए देखते हैं। जी नमस्ते, बट मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा आप कहना क्या चाह रहे हैं। अरे पूजा, हम चीन घूमने तो आ गए, मगर ना हमें इनकी भाषा समझ आ रही है और ना इन्हें हमारी। अब क्या करें? हाँ शिवा, ये तो बहुत मुश्किल हो गई। अब क्या करें? एक काम करते हैं, मोबाइल वाले सीरी से पूछ लेते हैं। हे सीरी, क्या तुम इस चीनी भाषा को हिंदी में अनुवाद कर सकती हो? जी हाँ मैम, मुझे उनकी आवाज़ सुनाएं। उन्होंने आपसे कहा, नमस्ते, आपका हमारे देश में स्वागत है। तो देखा तुमने आद्या, हम केवल तुम्हारे घर में ही नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में हैं। एक समय ऐसा था जब चांद पर पहुंचना असंभव था, उसे हमने ही हकीकत बनाया। वो कैसे, आइए देखते हैं। अरे वो मगलू देख रहा है, उनको कहते हैं गोला। अंधकार में कैसे टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। धत पगले, उसे गोला नहीं चंद्रमा कहते हैं। वहाँ तक पहुँचना संभव है। चिंता मत कर बबलू, एक दिन हम वहाँ तक जरूर पहुँचेंगे।